I'll give you an example. One of my peer group में एक लड़का था. हम्म तो he was preparing for UPSC with us, and उसका डेली का रूटीन ऐसा था कि he used to watch Topper Stock. हम्म डे 2-3 टॉपर स्टॉक देख डालेगा. He used to watch this motivational videos. और उस समय इतना रील्स वील्स नहीं था, बट जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखता था. हम्म तो उसमें अगर टॉपर ने बोला है कि मैं डेली 1 घंटा रनिंग करता था तो रनिंग करेगा. हम्म और मैं डेली आधे घंटे जिम जाता था तो जिम जाएगा. हर चीज करेगा, पढ़ेगा नहीं. तो ये जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन का जो रोल होता है ना, वो यहीं तक हाँ. रहता है कि आपको हार्ड वर्क करने से रोकता है. हम्म Hello everyone, welcome again to the YouTube channel. Today we have with us Sumesh Upadhyay ji, who is currently the district collector of Deoghar district in Odisha. So Sumesh is a 2016 batch IAS, right? 2016 batch, 2016 mein he cleared the exam in his second attempt. And today we'll be hearing a lot about what his UPSC journey was all about. And he has written a recent book. So we'll like to know about that book and what he thinks about the recent changing trends in UPSC civil services exam. So Somesh, hi, welcome to the channel. How are you doing? I'm all right, Abhijit. Thank you for this session, and I'm looking forward to having a chat with you. It's been a long time that I have discussed and reminisced those times of preparation, but I'm really looking forward to it. Right. So I think we've just been discussing a lot of the things before we started recording. And one of the things that you were telling me that 2015 was your first attempt in civil services exam. Yes, So yes. like what was the outcome over there? क्या रहा था, कैसे रहा था? 2015 was a difficult year for me. I started preparation 2014 October uh, in Delhi, and I was doing really well. I was progressing much faster than others because, and I could see my peers, Hmm. and I was very confident that I'll get through prelims. But in 2015, 31st May, I lost my father to cancer while I was still under coaching. Hmm. And that kind of Sorry created to some hear mental that. situation where I could not qualify. I just missed by 2.5 marks the prelims. I missed it, and also for the fact that the pattern was changed and paper 2 became qualifying in nature. It completely derailed my plan that year. But I'll tell you, it did मैम not deter me. It did not. नहीं, डिटर विटर छोड़ो आप. मेरे को मतलब सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू नो inner strength, courage to like push through with something that significant in life. मतलब Yeah. तो मतलब that's something that changes things यार. एंड उसके बाद भी आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई 2 नंबर से छूट गया तो मतलब ठीक है. मतलब दैट इज योर आई वुड से कि भाई मतलब फाइटर स्पिरिट. बट मैन टफ. बट Yeah, Abhijit, what happens once your back is on the wall, you don't have any option, right? You have to just move forward. And that way, I knew my predicament there that I've lost my father. I have two sisters who are, yet to get married. I don't have any savings. My father did not leave any property. So now I have to just move forward. There's no going back from here. So that way, when I did not qualify the prelims that year, I was more or less mentally prepared that this might happen, given my situation. I was not mentally, in the right condition, and but the confidence that I had, that saw me through, because looking at the preparation and looking at the syllabus and the examination, the previous year questions and everything, I had more or less a lot of idea about how this exam is to be cracked. And now I can say with the you will say that I've qualified, so I am able to say this. But even at that point of time, my roommate, he did not qualify for similar 1.5 marks or something, and I was consoling him. So I was in a situation where I knew that probably थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे तो अगले साल हो सकता है हो जाए. So that were you always a good student? one could say that, yes, I had a very good track record, and मतलब क्योंकि एक आप जो बोल रहे हो यहाँ पे कि भाई कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बिल्कुल. लोगों में कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है क्योंकि कहीं ना कहीं या तो मतलब पहले वो अच्छा नहीं परफॉर्म किए होते हैं स्कूल में या जिस भी कारण से. Yes, बट yes. दैट आई फील इज लाइक वन ऑफ द कोर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कि जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं है जी. बहुत मुश्किल है. What do you नहीं think? कर सकते आप, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है और इतना लंबा प्रोसेस है और इतने लोग लगे हुए हैं, और आप जहाँ भी रहते हैं, आप दिल्ली में कर रहे हो, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, सच अ ह्यूज peer group Hmm. that you always you cannot but compare yourself with 10 other people
और मेरे जानकारी में इतने लोग थे जो बहुत ही नॉलेजेबल थे, जिनसे आप किसी भी टॉपिक में बात करो, वो 10 लोगों का कोटेशन निकाल देंगे और 10 डेटा फेंक देंगे आपके सामने। तो वो इतना इंटिमिडेटिंग होता है कि जब तक आपको, इफ यू डोंट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया हुआ है तो हो सकता है ये भी हो जाए मेरे से। और कॉन्फिडेंस डज नॉट कम ओनली फ्रॉम आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस, बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव क्लियर्ड आईआईटीज एंड आईआईएम्स एंड देन दे आर नॉट able to clear UPSC in 6 attempts. So it does not come from just there. It also comes from your own preparation, your own understanding of the exam, your own, belief that ठीक है, ये सारे topics है, it's all under my control. It's not, nothing is beyond my control. So that gives you confidence. That's true, man. And I think I completely agree with your assessment over here कि like मेरे बैच में जो I think जो टॉपर था सिविल इंजीनियरिंग का in IIT Delhi, that guy went on to prepare for civil services and मतलब वो वहीं पे एक तो सबसे पहले मेरे लिए डिसेंटिवाइजिंग फैक्टर था कि भैया यार ये मतलब आई वाज अ 5 पॉइंटर इन कॉलेज, नॉट अ वेरी गुड लाइक कॉलेज ट्रैक रिकॉर्ड, एंड वहां पे वो बंदा है 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब डिपार्टमेंट में फर्स्ट है, इंस्टीट्यूट में रैंक 2 आया है, 3 आया है, ऐसा चल रहा है, एंड दिस गाय इज प्रिपेयरिंग एंड आई एम लाइक यू से इंटिमिडेटिंग होता है Very, very much. भैया, Yes. मतलब इस बंदे के साथ compete कर रहे हो तुम, Yes, yes, yes. एंड देन बट And that's just one guy that you know. I mean, there are so many other there are so many toppers like from that. IITs. Exactly. There are so many like that who are preparing, who are recently I was having a chat. I think there's a guy who just got selected this year, Siddharth Singh Dangi. I think 230 AIR. So he was somebody 9.8 from IIT Kanpur, had been preparing for 6 years. 6 attempt दिए हैं, हर बार mains दिया है. 6th attempt is when I finally cracked. तो भाई मतलब you're competing against those sorts of people. It can be very intimidating. Yes. तो मतलब अगर किसी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट्स से कि भाई मतलब पास्ट अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, क्यों है, क्या है, बिकॉज जरूरी नहीं है, वो क्रिटिकल नहीं है कि भाई आपने पहले कुछ किया हो, बट क्रिटिकल है कि कॉन्फिडेंस हो आपके ऊपर। Correct. तो ये गैप को कैसे कोई फुलफिल कर सकता है कि भाई मेरे पास पहले कोई अचीवमेंट नहीं है बट नाउ आई वांट टू डू दिस, तो हाउ डू आई बिलीव इन माई सेल्फ, हाउ कैन समबडी गो Very देयर? difficult, and it is much more difficult for those kind of aspirants. But then you have to take inspiration from what others have achieved previously. There are ample cases where many people not having great track record. अवनीश शरण सर को ले लीजिए, उनका हर कोई जानता है कि थिंकिंग अबाउट हिम आल्सो, क्योंकि yes, ट्विटर yes. पे वो काफी He एक्टिव comes to रहते हैं। mind. Yes, yes, and such a great achievement from what his 10th and 12th marks shows. So उनसे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। दूसरा चीज, सेल्फ टॉक काफी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि आप खुद को क्या बोल रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि probably nobody is going to tell good things about you. I was very fortunate कि मेरे साथ जो roommates थे बहुत ही supportive थे, and they used to write my rank on my book कि तेरा तो हो जाएगा, AIR 10 12 ऐसे लिख देते थे। तो उस तरह का अच्छा पीयर ग्रुप मिलना हमेशा पॉसिबल नहीं, तो जो आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे। सो इट हैज टू कम फ्रॉम योर ओन सेल्फ टॉक। आपको खुद को बोलना है कि नहीं, आई कैन डू इट, एंड सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस कि आप कहाँ कहाँ पे कमजोर हो और उस पे मैं इस तरह से वर्क करूंगा, उसके लिए प्लान होना चाहिए। बस आपको इट कैन नॉट बी हवे में ना कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कर लूंगा, बट कैसे, आपके पास प्लान है? आप खुद को पहचानते हैं कि आपको सी सेट में वर्क करना है, कि सी सेट में इंग्लिश ठीक है, मैथ्स पे वर्क करना है, या फिर जीएस के इस पेपर पे ज्यादा वर्क करना है? आपको क्या आइडिया? बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे में मैंने पूरे प्रिपरेशन में बस एक ऐसे लिखा था, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे रूममेट ने फोर्स किया था मुझे कि नहीं तू एक तो लिख। तो मैंने बोला ठीक है, तो आई रोट दैट ऐसे and I got 164 in essay. Why I was so comfortable with it? Because I knew I used to do blogging for a long time. मेरा writing skill अच्छा था, language skill अच्छा था, knowledge base उतना तो आ ही जाता है after 1.5 year preparation. So I had this idea कि writing में मेरा कोई issue नहीं है। तो I could save that time that I could have given to essays, wasted on it, and give it to something else. जैसे कि economics was new for me. It was very interesting and I was very good. I became very good at it, but it was completely new for me. Going back to history, and then civics was completely new for me. Polity was new for me, so I could give more time to that. So इससे confidence आता है, सिर्फ हवा में बातें करने से या फिर ये कहते रहने से या मोटिवेशनल वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको प्लान होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट, सो आई थिंक वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि भाई ग्रैंड एंट्री वीडियोस बट बड़ी ट्रेंड कर रही होती है आजकल सोशल मीडिया पे। एंड सी आई कंप्लीटली एग्री कि कभी कभार ना मतलब
मे बी शायद वैसा टाइप का वो जो आई वुड से कि मतलब लो वैल्यू मोटिवेशन है ये, राइट? कि वो एक इंस्टेंट थोड़ा हिट शायद मिल जाए अभी के अभी कि भैया हाँ मतलब ओ माय गॉड कर देंगे, ये होगा वो होगा, बट दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल ड्राइव यू कि भैया ये 3 महीना 6 महीना तक आप एक वो ग्रैंड एंट्री वीडियो देखी थी वो चल रही होगी। तो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन like this sort of, how would you say, immediate motivation, and like what is like something that drives people long term? What is long term? What was something that drove you long term? No, I'm not big fan of this kind of motivational videos, grand entry or IAS का grand entry, IPS का grand entry, यूनिफॉर्म में सैल्यूट कर रहे हैं. These are like you said, it's very ephemeral, you know, बहुत ही short time के लिए आपको हो सकता है किक कर दे, और सबको नहीं करेगा. मतलब if I see those videos, I'll cringe probably. तो वो आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं दे पाएगा, एंड वो आपका मोटिवेशन होना भी नहीं चाहिए. ये सर्विस इतना ज्यादा मतलब स्कोप इसका इतना ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, जिसमें आप रह के कितने लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हो. इसमें आपकी ग्रैंड एंट्री डजेंट मैटर एट ऑल यार. आप कई बार ऐसा होगा, आप ऐसे ही चल के जा रहे हैं, कहीं पे कुछ पहाड़ है, यहाँ पे पहुंचना है, कहीं पे आप चल के जा रहे हैं, आपको ग्रैंड एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे. तो आपको यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. दिस विल नॉट, if this is your motivation, please, you know, just change, reorient yourself if you are And preparing for this exam. completely agree with you कि मतलब ये वाली चीज जो है, मतलब वही होता है ना कभी कभार कि जैसे व्हाट डू यू से, मतलब मैंने कोई टॉपर एक इंटरव्यू देख लिया, या मतलब मैंने कोई एक वो मूवी देख ली जो भाई मतलब वो होता है ना पंप मूवीज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल लक्ष्य हैज बीन वन ऑफ दोज मूवीज जो कि मतलब हैज बीन लाइक अ जनरेशन ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैज बीन वाचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, Yes. राइट? कि भाई ऋतिक रोशन का होल जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एवरेज गाय कि भाई नहीं करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, टू बीइंग लाइक एन आर्मी ऑफिसर एंड लाइक यू नो टेकिंग चार्ज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लाइक लक्ष्य तो हर हाल में पाना है. तो Yes. सी दैट आई फील ठीक है, मतलब तुम ग्रैंड एंट्री वीडियो देख लो, Yes. देखो तुमको चाहिए, जरूरत है, फाइन, बट Hmm. लाइक व्हाट इज इट दैट कैन ड्राइव पीपल इन द लॉन्ग रन? व्हाट वाज इट फॉर यू? I'll give you one example. One of my, you know, peer group में एक लड़का था. तो he was preparing for UPSC with us, and उसका डेली का रूटीन ऐसा था कि he used to watch Topper Stock. डे 2-3 टॉपर स्टॉक देख डालेगा. used to watch this motivational videos. और उस समय इतना रील्स वील्स नहीं था, बट जैसे लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखता था. तो उसमें अगर टॉपर ने बोला है कि मैं डेली 1 घंटा रनिंग करता था, तो रनिंग करेगा. और मैं डेली आधे घंटे जिम जाता था, तो जिम जाएगा. हर चीज करेगा, पढ़ेगा नहीं. तो ये जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन का जो रोल होता है ना, वो यहीं तक रहता है कि आपको हार्ड वर्क करने से रोकता है. तो ये मोटिवेशन आपको तभी आएगा जब आप स्कोप समझेंगे इस सर्विस का. जो आप करने जा रहे हो वो कितनी बड़ी चीज है, जिसमें एक स्कॉर्पियो, एक इनोवा, एक बोलेरो से वो नहीं आप उसको आंक सकते हैं. और कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं उससे नहीं आंक सकते हैं. और डिपेंडिंग ऑन द कार्डर यू आर इन, मे बी यू विल बी गोइंग अलोन, ऑल बाय योरसेल्फ, नो ग्रैंड एंट्री एनीवे. सो यू हैव टू बी रीओरिएंट योर अप्रोच, कि मैं अगर उस पोजीशन में पहुंच जाता हूं तो मैं कितने लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हूं. कैसे चीजें बदल जाएंगी मेरे लिए भी, और मेरे पास क्षमता होगी कि इतनी जो मिजरी में देख रहा हूँ, इतने लोगों की प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, उनको सॉल्व करने की, डायरेक्टली उनसे जाके मिलने की. और ये पावर जो आपके पास आता है टू डू गुड, द पावर ऑफ दैट शुड द बिगेस्ट मोटिवेटर. मतलब नो ग्रैंड एंट्री वीडियोस कैन, आई नेवर वॉच्ड एनी ग्रैंड. उस समय था भी नहीं, आई थिंक वो थैंकफुली. ट्रेंड नहीं था उस टाइप पे, ट्रेंड नहीं था उस समय, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं था. था. और बट मूवीज लाइक लक्ष्य एंड ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक दोज आर अ बेटर क्वालिटी ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स, बिकॉज वहां पे आपको बेटर देन ऑब्वियसली क्लैरिटी ग्रैंड मिलती है. एंट्री वीडियोस. आपको हो सकता है क्लैरिटी मिल जाए लाइफ में, कि उसमें ऋतिक रोशन को कैसे अपना लक्ष्य पता चला कि मुझे ये बनना है, तो उससे क्लैरिटी आ जाए. ठीक है. बट सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग. अगर आप इसके स्कोप को जानते हैं कि आप अगर इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आई मीन उससे बड़ा मोटिवेटर क्या हो गया यार, कि हर दिन आप लोगों की लाइफ बदल रहे हैं. आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू कि एक ये एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत लोगों की बिफोर दे गेट इनटू सर्विस कि भैया दुनिया बदल देंगे, कि भाई आईएएस बना दो एक बार या आईपीएस बना दो, मतलब व्हाटएवर सर्विस में कर दो, but like दुनिया बदल देंगे. तो like what's the difference between the expectation that people have before
they join service, and what is the reality now that you are a district collector? मतलब that is like that's the dream post, right? कि भाई अब जो खुद देखता करता grand entry whatever the hell, it is all related to this particular post. So what is the difference between the expectation that people have, aspirants have before they've gotten into service, and what is the reality that you face on a daily basis in terms of कि impact क्या है वो, कितना कर पाते हो, कैसे कर पाते हो, immediate? एज एन एस्पायरेंट, हाँ एस्पायरेंट की तरह आपको उसमें ज्यादा हमें आइडिया होता नहीं है ना। हम्म हमें लगता है कि ऑफिसर बन जाएंगे, वी हैव लॉट ऑफ पावर टू डू थिंग्स। हम्म तो डिपेंडिंग ऑन योर मैच्योरिटी लेवल एंड एक्सपोजर लेवल आप अलग अलग चीजें सोचते हैं। कोई yeah सोचता है मैं दुनिया बदल दूंगा, कोई सोचता है मैं जिला बदल दूंगा, कोई सोचता है मैं सारा करप्शन हटा दूंगा और ये कर दूंगा। मतलब बहुत सारे चीजें हम सोच के रखते हैं, और होना भी चाहिए एक लेवल का जोश आपके अंदर। कमिंग एज अ न्यू ऑफिसर यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन की yeah to do the power to do good, the will to do good रहना चाहिए. But once you come to the service, you realize that you are not alone in this thing, and you are not the only one who wants to do good. There are a lot of other people, and not just in the government system. There are NGOs, there are political leaders. They all probably want the same goal as you, and all have different kind of constraints, different kind of interests, and you are functioning in that whole scheme of things. You're not functioning alone. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कलेक्टर हैं तो आपका बीडीओ, आपका जूनियर इंजीनियर, जो जेई है, आपका एई है, वो लोग ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपका विजन होता है, आप गाइड करते हैं, आप देखते हैं, इंश्योर करते हैं क्वालिटी सही हो रहा है कि नहीं। आप एक लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन करवाते हैं, एक लेवल ऑफ स्पीड मेंटेन करवाते हैं। तो योर रोल इज एज अ लीडर बिकम्स दैट। बट आपके साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं जिनके एफिशिएंसी, जिनके कोऑर्डिनेशन से काम होती है। सो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं ही सारा कुछ कर दूंगा और मैं करप्शन पूरा फाइट कर लूंगा, there are a lot of things which happen after there's a considerable political will. There are a lot of things that can happen just by you willing to do things. तो इसमें डिस्टिंक्शन आपको पता चलेगी जैसे आप सर्विस में जाएंगे। हमें भी इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर अस आल्सो वंस वी केम इनटू सर्विस, बट ठीक है, आप सीख जाते हैं उस So टाइम। I think this is one of the lines that you said in the talk that we were having, कि you can't force yourself on people, right? ट्रू। It is a यस collaborative role. आपको सब यस साथ लेके चलना ही है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल आप नहीं हो एक इंसान सकता। हो, आपको आप डिस्ट्रिक्ट मैनेज करनी है। आप कॉम्बैटिव मोड में रह के आप कोई काम नहीं करा सकते। आपको लोगों को आपका अगर विजन है एक, तो लोगों को उससे कन्विंस करना पड़ेगा कि हम्म ये क्यों जरूरी है करना, और इसको इस टाइम बाउंड मैनर में क्यों करना है। तो लोग वंस दे आर अलाइन टू योर विजन, नो, इट हैपेंस वेरी फास्ट एंड इट्स अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। And I think it's a rare few people who become good at it, I feel, in the long run. क्योंकि मतलब even in service, there are good officers. I'm not saying कि there are bad officers, but like there are people who are better at their job than others. There are people who learn faster, and ये एक I feel is always a core skill. So as an IAS officer, as a collector, what would you say are 4 or 5 very core skills that somebody needs to have? I think single biggest skill is that human resource management. Hmm. You will have at your disposal, first of all, गवर्नमेंट में आपके पास जितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उतने होते नहीं हैं। Hmm. There's always vacancies, and then remaining में आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो कि कुछ Hmm. बहुत एफिशिएंट और मोटिवेटेड होंगे, कोई कुछ एफिशिएंट होंगे पर मोटिवेटेड नहीं होंगे, कुछ ना ही एफिशिएंट होंगे ना ही मोटिवेटेड होंगे, और कुछ का मोटिवेशन कुछ और ही है, हाँ. अलग दिशा। तो इतने सारे लोगों को लेके आपको एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, और उनको मैनेज करना। उनको आप तुरंत किसी को डिसमिस नहीं कर सकते, कि तुरंत किसी को हटा नहीं सकते। आप Hmm. सस्पेंड करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपके पास हो सकता है वो एक ही बंदा हो, Hmm. उसकी जगह कोई और ना हो। Hmm. तो इस तरह से ये चीजें कंस्टेंट आपके साथ आती हैं, तो आपको मैनेज करना, लोगों को साथ लेके चलना। आपके पास यू हैव टू आल्सो डील विद पॉलिटिकल पर्सन, देयर ऑब्वियसली द इलेक्टेड लीडरशिप, तो उनके Yeah. साथ ही आपको काम करना है। तो उनके साथ सामंजस्य बना के रखना, गुड रिलेशन बना के रखना, और जो आपका प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हर तरह के लोगों से, इवन पब्लिक, समटाइम्स यू विल वांट टू बिल्ड अ रोड, यू विल थिंक कि लोगों का भला हो रहा है, और वहीं के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मे बी जेन्युइन रीजन। आप Hmm. अगर उसको डिसमिस कर देंगे, अरे इनको कुछ नहीं पता है तो गांव वाले हैं,
तो आप कभी नहीं कर पाएंगे वो काम। तो वो चीज़ समझना कि मुझे ऐसा कई बार हुआ है जब गांव से रोड निकल रही है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अक्सर होता है। और वहाँ पे एज एसडीएम जब मैं था तो मैंने बहुत बार जाकर उनको समझाया कि ये रोड क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा। उनकी क्या परेशानियां थी कि ये रोड बनने से हमारे यहाँ पानी जम जाएगा, तो उसको सॉल्व करना कि वहाँ पे ड्रेन होना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है विजन जो है, जो जूनियर इंजीनियर आपका वो प्लान किया है, हो सकता है उसने नहीं सोचा इतने बार। तो उनके ग्रीवांसेस भी जेन्युइन होते हैं, उसको सबको कंसिडर करके लाना। दिस बिकम्स ऑल दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मैन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। So this is single biggest factor. Rest of the things falls in place if you can do that. Because mainly आपका लीडरशिप का रोल है, और लीडरशिप में आपको आपके रिसोर्सेज मैनेज करने होते हैं। Right. So I think you've put it quite beautifully in that कि भाई आपने 4 different role इसमें बता दिए, but all of it you've summed under कि भैया देखो eventually लोग हैं, लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ रहना है, and if you can do that you'll be fine. Right. So Sumesh, that's sort of an understanding. Let's get back to the beginning of the exam cycle कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो हाउ डिड यू मेंटेन अ चेक ऑन योर सेल्फ कि भाई मतलब मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्या क्या कैसे, मतलब कैसे पता चलता था, कैसे आप ध्यान रखते थे इस चीज का? ऐसा है कि टेक्निकली मैं अगर बताऊं तो आपका मेरा जो अप्रोच है किसी भी एग्जाम का, एंड आई टोली आई हैव नॉट टोल्ड यू बट आई क्लियर्ड 3 और 4 एग्जाम्स इन द सेम ईयर। आई और सॉ द ट्वीट्स। हाँ, तो इसका टेक्निक यही था कि मेरा टेक्निक ये था कि हर एग्जाम को समझना है। हम्म। आप कैसे समझेंगे? आप उसके सिलेबस देखेंगे, हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, उसको देखेंगे, आप चाहे तो उसको सॉल्व भी करेंगे। हम्म। तो जब आप कर लेंगे 10 साल के सवालों का समाधान, तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, और आपके अंदर एक, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एक प्लान आ जाएगा कि मुझे हम्म। इसको ऐसे टैकल करना है, इस एरियाज को। तो फिर आप उसको डिवाइड करते हैं टाइम की, इतने महीने में मेरा हो जाना। जैसे जब पहली बार तैयारी करते हो तो 3 महीने में तो मेरा एनसीईआरटी सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, हम्म। और इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट तो मुझे समझ तो आने चाहिए। अब जैसे यही एक आपने बहुत छोटी चीज बोल दी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि आपने जैसे बोला कि भाई एनसीईआरटी 3 महीने में अपने को करनी है कवर। ये 3 महीना कहाँ से आया? हाउ डिड यू अराइव एट दिस फिगर? वो मेरा खुद का आकलन था कि मैं कितने समय में अच्छे से इसको कवर कर सकता हूँ। और मतलब किस बेसिस पे आपने अपना एस्टिमेशन लगाया कि भाई आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, आपको हम्म। अलग सब्जेक्ट्स में अलग स्पीड होती है। जैसे हम्म। इकोनॉमिक्स में पहली बार पढ़ रहा हूँ तो स्पीड थोड़ी कम है, हम्म। बट ज्योग्राफी में मेरा पहले से काफ़ी इंटरेस्ट था, और मतलब हम्म। 10th हाई स्कूल से लेवल से, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्पीड था। तो सबको कह रहे थे, एक रफ फिगर आपके दिमाग में आता है कि हो सकता है 3 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते। तो फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है आप, तो 3 महीने 6 महीने हो जाएंगे। अगर आपका मेंटल फ्रेम अच्छा है तो हम्म। 3 महीने का काम आपका 2 महीने में हो सकता है, क्योंकि हम्म। आपकी बाई बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। हम्म। तो एक फिगर आता है। कुछ कुछ प्लानिंग ना आपको कॉन्शियसली करनी होती है। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं जाते ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हम्म। वेरी हाईली अनप्रोडक्टिव। मतलब मैं जो भी आपको सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि आप अगर पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो प्लीज पहले बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी समझिए, हम्म। हिस्ट्री समझिए, इंटरनेशनल रिलेशन समझिए, और फिर न्यूज़पेपर पढ़िए। देखिए आपको कितना मजा आएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। हम्म। अगर शुरुआत करते हैं जहाँ पे आपको हर लाइन में 2 4 टर्म ऐसे निकल रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो you'll get really frustrated, हम्म। you'll get demotivated, और आपका पूरा समय नष्ट होना। आप 4 5 घंटे एक न्यूज़पेपर निकालेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। हम्म। सो वंस यू स्पेंड दिस 3 months, डू योर बेसिक्स राइट, एंड देन यू डाइव इनटू न्यूज़पेपर। आपका आधे घंटे में 1 घंटे में न्यूज़पेपर। एंड दैट्स कम्प्लीटली, मतलब यही बिल्कुल एक बेसिक जैसे सवाल होता है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सर न्यूज़पेपर नहीं समझ आ रहा, क्या करे? तो आई थिंक ऑल्दो आई डिफर इन व्हाट आई से टू पीपल, क्योंकि मेरे से सवाल जो पूछते हैं वो ये है कि सर न्यूज़पेपर के नोट्स आज से बनाने नहीं बनाने, न्यूज़पेपर को कितना डेप्थ में करना है, कितना घंटे करना है। मैंने कहा कहानी की तरह पढ़ दो बस, दिमाग मत लगाओ, सोचो मत, 2 महीना कहानी की तरह बस पढ़ दो। क्योंकि हम्म। देखो एक चीज होती है विच अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू रियलाइज इज कि कुछ स्किल्स है या कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समय के साथ ही आएंगी, बिल्कुल। उनमें फास्ट फॉरवर्ड आप जा ही नहीं सकते हो। हम्म। एंड वो न्यूज़पेपर वाली वो एक चीज है, क्योंकि जैसे आज मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है जो बहुत बड़ी बात लग रही है, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ एंड यार ये तो आरबीआई की मीटिंग है, कुछ हो रहा है। मैं 3 महीने पेपर पढ़ा, मैं कहा यार ये तो हर दूसरे महीने होता रहता है।
Correct, So correct. these are some things that I feel that you only get once you have spent the time in that particular area. Right. So even though आपने सजेस्ट किया है कि भाई पहले आप बेसिक्स कर लो सारा, उसके बाद न्यूज़पेपर पे आना, मतलब आई जनरली टेंड टू सजेस्ट कि भाई आप पेपर पढ़ दो कहानी की तरह, कोई दिक्कत नहीं देयर है। आर मल्टीपल वेज यार, मतलब मैं तो एग्जैक्टली। बोलता हूँ कि आपको जो सूट करता है आपको चूज करो। हम्म। आप 10 टॉपर के बातें सुनो, 10 तरीके से उन्हें तैयारी की है, कोई बोलेगा न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में 8 महीने बहुत रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ा। हम्म। उसके बाद 1 साल तक मैं न्यूज़पेपर हाथ में लगा नहीं लगाया, मैंने खरीदना बंद कर दिया पैसे बचाने के लिए। तो रामकृष्ण भगवान जो है वो, हम्म। श्री रामकृष्ण जो स्वामी के गुरु जी थे, वो कहते हैं जो हम्म। तो बंगाली में कहते हैं जतो मत ततो पथ, मतलब हम्म। जितने ओपिनियन है उतने रास्ते। तो ऑब्वियसली योर स्ट्रेटेजी आई कंप्लीटली एग्री विद। आप सिंपली अगर उसको So रीडिंग करना चाहते हो this विदाउट टेकिंग द brings us लॉ। back to another point that you made early on, which is कि यार तरीके जैसे है, जितने तरीके हैं, जितना आप सोच पा रहे हो, जितने ओपिनियन हैं, उस तरीके से रास्ता बन जाता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू यू नो योर सेल्फ। यस, तो यस। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट फॉर समबडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और इन जनरल इन लाइफ टू एटलीस्ट कि भैया पता हो क्या चल रहा है। वेरी कोर, आई मीन इफ यू डोंट नो योर सेल्फ यू आर हम्म। गोइंग नोवेयर। आप मैं बताऊंगा मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। जैसे कि मुझे एसएससी सीजीएल भी देना था, मतलब आई वाज इन वेरी डायर कंडीशन, माय फादर पास्ट, हम्म। नो सेविंग्स, एंड देन माय सिस्टर्स वर कमिंग, अबाउट मैरिजेस। तो आई नीडेड अ जॉब। और फिर मैंने WBCS जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, उसकी एग्जाम की फॉर्म भरी। हम्म। मैंने एसएससी सीजीएल दिया। मैंने यहाँ तक कि वो रेलवे का उस साल 1 लाख वैकेंसी निकला था, ग्रुप हम्म। सी, तो उसका भी मैंने फॉर्म भरा। तो देन आई सेड कि ये चारों अलग, यूजीसी नेट, हम्म। यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज से, वो भी मैंने भरा। तो फिर मैंने रियलाइज कि ये 5 अलग अलग टाइप के एग्जाम है, हर किसी का अलग रिक्वायरमेंट, हाउ डू आई डू इट। हम्म। तो देन आई एनालाइज्ड माई सेल्फ कि फिर मैंने एग्जाम एनालिसिस किया, मैंने खुद को एनालिसिस किया। मैं देखा कि एग्जाम में सीजीएल में इंग्लिश मेरा ठीक है, हम्म। मैथ्स मेरा ठीक है, बट स्पीड बढ़ाना है क्योंकि वो बहुत ही कम हम्म। टाइम मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग मैंने देखा कि पिछले 10 साल जो क्वेश्चन आते हैं वही रिपीट हो रहे हैं। हम्म। और इंग्लिश और जीएस तो मेरा खैर तैयारी हो ही रहा है यूपीएससी में। तो मुझे बस मैथ्स पे फोकस करना है, एंड आई टुक सैटरडेज का एक ऑनलाइन टेस्ट ले लिया। उसमें मैंने मैथ्स प्रैक्टिस कर डाला, एंड आई हैड अ टारगेट कि 200 में मेरे को 150 आ जाएगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, एंड आई हम्म। एक्चुअली गॉट 150 एग्जैक्टली। तो इस तरह से सेल्फ एनालिसिस और एग्जाम का एनालिसिस आप नहीं करोगे, आप डायरेक्शन में नहीं चल पाओगे सीधे। हम्म। तो बहुत जरूरी है। एंड दिस इज विच ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू कि भैया अब जैसे एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है लोगों का कि भाई किस किताब से पढ़े। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आई टीच हिस्ट्री, तो जनरली मेरे को हिस्ट्री का सवाल ज्यादा आता है कि सर लाइक स्पेक्ट्रम करनी है, बिपिन चंद्रा करनी है, शेखर बंदोपाध्याय करनी है, 50 किताब है, कोई सी कर लो यार। हम्म। बट एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा रहता है लोगों में। बिल्कुल। राइट, सो सिमिलरली लाइक ज्योग्राफी, यू हैव रिटन अ बुक रिसेंटली इन ज्योग्राफी, दैट इज जियोग्राफी थ्रू मैप्स, राइट। इंडियन तो ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, द आइडिया वाज कि ज्योग्राफी में भी अब लाइक 50 किताबें हैं। अब लाइक आजकल कुछ इंस्टीट्यूट्स नए चल रहे हैं, जैसे PMFIS करके है, उनका कंपाइलेशन आता है। या मतलब जनरली व्हाट आई पर्सनली प्रेफर्ड इज कि भैया जो 4 NCERT होती थी 11th 12th की, दो हम्म, सौ ब्रिलियंट, मतलब उसके साथ अगर आपने एटलस कर लिया तो दैट्स मोर देन इनफ। बट हम्म। एक अंडरस्टैंडिंग मेरा हमेशा यूं रहा है कि भाई ज्योग्राफी आप कर रहे हो और मैप आप नहीं देख रहे हो, हम्म। तो उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स। जैसा कि हम बात करते हैं, मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ता था और जब भी हिस्ट्री हम्म। पढ़ता था ऑल्सो, स्पेशली वर्ल्ड वार हो या फिर इंडियन हम्म। डिफरेंट किंगडम्स हो, तो मैं हमेशा मैप लेके बैठता था ताकि मुझे एक रेफरेंस मिले। और आपको याद तभी रहेगी चीज़ें और इंटरेस्ट तभी बना रहेगा जब आप कंटेक्चुअलाइज कर पाएंगे उसको और रेफरेंस हम्म। दे पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा था। या। तो उस सेंस में मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस बताऊं ज्योग्राफी की, हम्म। तो पहले तो मैंने ऑप्शनल चूज करने में गलती करी कि मैंने जाते ही जूलॉजी पिकअप कर लिया। हम्म। उसमें मेरा थॉट ये था कि मैं यूजीसी नेट दूंगा तो वो भी एक थोड़ा मेरा बैकअप रहेगा। और जूलॉजी में उस साल टॉप थर्ड रैंक, आई थिंक रचित राज सर थे थर्ड हम्म। रैंक। मुझे लगा अच्छा उसमें भी तो रैंक आते ही हैं। हम्म। तो आफ्टर स्पेंडिंग 2 months, and zoology was not my core. I was from microbiology, I was from general life sciences, not हम्म। from zoology. तो वो 2 महीने मेरे बहुत समय बर्बाद हुए, करोल बाग से मुखर्जी नगर तक जाना और फिर 3 घंटे कोचिंग में बैठना और वहाँ कुछ ना समझ आना, हम्म। फिर नया है और बहुत चीज़ याद करना। तो 2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया कोचिंग। हम्म।
And then I picked up geography because I had natural inclination. मेरा इंटरेस्ट अच्छा था उसमें. हम्म मैप बनाने में मेरी काफी पारदर्शिता थी स्कूल टाइम से ही. आप हम्म अगर मेरा बुक देखेंगे इंडियन ज्योग्राफिकल मैप्स, तो एक जगह पे मैंने खुद के हैंड मेड मैप्स, और इट्स ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट ले लिया हूँ, बस हम्म तुरंत बना के उसको दिया है. तो हम्म दैट्स काइंड ऑफ स्किल आई हैड. एंड आई डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टेकिंग कोचिंग. तो हम्म मैं बनारस शिफ्ट हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और टू सेव मनी. तो वहां पे मुझे खुद से तैयारी करनी. देन आई रियलाइज कि अगर ज्योग्राफी के लिए यूपीएससी ओरिएंटेड बुक बहुत कम है जिसमें क्वालिटी है, हम्म और जो एनसीईआरटी की कवरेज भी देता हो, और हम्म जिसमें आपको मैप का इमीडिएट रेफरेंस है. और एक थिंग में कलर्ड मैप, जो एटलस मुझे इसलिए पसंद है कि बहुत कलर्ड मैप्स आते हैं, और उसमें या बहुत इजीली यू डिस्टिंक्ट कैन डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिफरेंस. तो वो हम्म ब्लैक एंड व्हाइट मैप होते हैं एग्जिस्टिंग बुक्स में. तो वो चीज़ मुझे बहुत परेशान किया उसने. और फिर मैंने अलग अलग जगह से रेफरेंसेस लेके, एटलसेस लेके, फिर गूगल करके, यूट्यूब वीडियोस देख के अपने खुद के कुछ नोट्स बनाए, जिससे कि मुझे और हम्म ज्यादा क्लैरिटी आई. सो वंस आई गॉट दैट, आई रियलाइज कि देयर इज अ गैप. मतलब एनसीईआरटी इज रियली गुड फॉर ज्योग्राफी, यू शुड ऑलवेज स्टडी दैट. बट आपको एक मैप के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप या तो एटलस साथ में ले लो, हम्म और अगर वो आपको कमरसम लग रहा है तो फिर मैंने सोचा देन एक ऑब्वियसली Google का सर की नई किताब आई है एक विच आई वुड हाँ. लाइक recommend that people do check out, क्योंकि यार ये जो आइडिया है कि आपको लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि भाई देयर आर चैप्टर्स जो मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो मिनरल रिसोर्सेज की बात कर देंगे एंड वहां पे बोल देंगे कि भाई इस स्टेट में ये पाया जाता है. अभी आप मैप पे नहीं देखोगे हम्म. और उनको मतलब एक एक के ऊपर मतलब क्रॉस रेफरेंस नहीं करोगे, तो आधी बार आपको ये नहीं पता चल रहा कि भाई जनरली यू विल फाइंड आयरन ओर और कोल आसपास ही है कहीं ना कहीं. मतलब वो इलाके वहीं पाए जा रहे हैं, मतलब उसमें नहीं हो रही दिक्कत ऐसी कोई. बट अगेन उतना आगे तक भी पहले लोग नहीं पहुंचते. बट अगेन इट्स अ एफर्ट दैट सुमेश सर हैज मेड टुवर्ड्स improving that ability, and I would highly recommend that you check out the book Indian Geography Through Maps. अब आपने ये किताब लिखी, तो अब इस किताब के दौरान भी मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि राइटिंग अ बुक इज वन ऑफ दोस ग्रेट प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. तो व्हाट डिड यू लर्न अबाउट योरसेल्फ व्हाइल राइटिंग दिस बुक? मतलब आपने लिखी किताब ऑब्वियसली मतलब हैविंग अ थॉट ऑफ कि भाई हाँ गैप है, भाई इस चीज की रिक्वायरमेंट है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मतलब हमारा जो यूपीएससी एसेंशियल वगैरह का कोर्स है उसमें भाई मतलब इतने मैप डाले हैं मैंने हिस्ट्री में कि भाई मतलब ये एम्पायर का यहाँ था, भाई फ्रेंच कॉलोनियल पोजेशंस यहाँ थी, पोर्चुगीज यहाँ थी, ये क्यों झगड़ रहे थे, कैसे हो रहा था, कि भाई ब्रिटिश कैसे कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं. लाइक सिंपल थिंग लाइक व्हाट आई डिड वाज कि फ्रॉम 1757 टिल 1857 मैंने हर 20 साल के बीच बीच के मैप दिखाया है कि भाई 1757 है, अब लाइक 1770 में क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक आ गए हैं, 1790 में किधर प्रोग्रेस है, कहाँ तक आ गए हैं. मतलब साथ ही साथ पर चल रहा है कि भाई मराठास का पहले क्या था, अभी देखो कहाँ चल रहा है. तो लाइक इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू लाइक ग्रास्प दैट, राइट? तो Yes. obviously that process itself is quite enjoyable for me, because what I understand of it is कि मतलब मेरे को वो दिख रहा है, if I can see it तो then I can understand the ebb and flow of things. So what was it Yes. that you most enjoyed about creating this book? What was it that you had the most fun with? No, I started writing this book in 2019. Earlier, my idea was कि मेरा जो वेबसाइट है is34.com है, उस पे अपलोड कर दूंगा मेरे जो भी नोट्स वगैरह हैं. और फिर मैं सोचा कि बुक हैज ऑलवेज मोर एक्सेसिबिलिटी. बहुत ज़्यादा लोग बुक से रेफरेंस कर पाते हैं. इट सर्व्स ग्रेटर पर्पस. तो देन आई कॉन्टेक्टेड पब्लिशर, एंड देन तो उस समय 2019 जब लिखना स्टार्ट किया, कोविड का टाइम था, और उस समय फिर समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. But I was enjoying the process because one thing it was, going back as an aspirant. And once you qualify ना, you that हम्म aspirant वाला phase आपके लिए काफी रोमांटिक हो जाता है. अभी आपको लगता होगा कि स्ट्रगल है, काफी स्ट्रगल है, but you will always want to go back to that phase because probably that was the most exciting phase of your हम्म life. अनसर्टेनिटी था, पॉसिबिलिटीज भी हम्म थे, और वो एक पीयर ग्रुप था, अलग ही लाइफ थी. तो आई वॉज एक्चुअली रिलीविंग दोज मोमेंट्स, बिकॉज जब भी आप एक चैप्टर पढ़ते हो, आप याद करते हो, अच्छा इसको मैंने उस समय पढ़ा था और ऐसे डिस्कस किया था जिससे, हम्म तो बहुत सारी चीजें याद आती है. तो वो चीज़ था. और लर्निंग के तौर पे तो ज्योग्राफी एज इट इज मुझे काफी इंटरेस्ट आता है, और जितना इंसाइट मिलते जाता है, जैसे कि उसमें डेटा जो है, कई सारे बुक्स में जो लेगेसी बुक्स हैं उनमें
बहुत पुराने डेटा है, 10 साल 20 साल पुराने data है। तो उसको अपडेट करने के लिए जो एक सर्च करना था कि हाँ गवर्नमेंट का ऑथेंटिक वेबसाइट हो, वहां से डेटा सोर्स आए, दो हम्म तीन जगह पे अलग डेटा है, कौन सा लेटेस्ट है, उसका विजुअलाइजेशन वहां पे हो सकता है अलग है क्योंकि उनका पर्पस अलग था, बट मुझे हम्म स्टूडेंट्स के लिए अगर विजुअलाइज करवाना है तो उसको कैसे करवाना है, दिस वाज इटसेल्फ लर्निंग प्रोसेस, और काफी मजा है मुझे इसमें। So I think like sort of this also connects back to one of the things that you were talking earlier, which was manpower management, human management. कि अब जैसे आप इतनी बड़ी टीम लीड कर रहे हो, to be able to think from multiple perspectives, to be able to understand कि भैया अच्छा जो सामने वाले को कैसे बेहतर समझ आएगा, so that is also I feel one of those essential skills that is required in order to write a good book. Yes, yes. Once you are writing a book, you have to always write from the perspective of aspirant. Ki, even when you're writing an answer, I'll Hmm. tell the listeners a very key skill of writing an answer. कि आप assume करिए कि आपका जो एग्जामिनर है उसको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, बेसिक चीजें Hmm. पता है, लेकिन आप जो समझाना चाहते हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया वो इसलिए पूछ रहा है कि उसको पता नहीं है इसका आंसर। Hmm. तो आप इस तरह से लिखें कि वो क्लैरिटी उसके दिमाग में है, कि उसको इस तरह से मत लिखें कि मुझे ये चीज पता है। Hmm. कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए पूछा जाएगा किसी कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए जिसमें कि मान लीजिए टॉपिक के बारे में बोला गया और फिर बोला डिस्कस करिए इसमें, जैसे अगर आप Like थ्रो करें बिकॉज a very simple question which came up in last couple of years is कि like what can India learn from France's idea of secularism, or sorry opposite, what can France learn from India's idea of secularism? राइट, Discuss. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को, बट इसमें क्या होगा ना, कई लोग गलतियां ये करेंगे कि फ्रांस का सेकुलरिज्म के बारे में बात करने लगे, फ्रांस ने कैसे सेकुलरिज्म दिया और फिर कैसे आया, फिर फ्रेंच Hmm. रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर लें, जो कि काफी डिफिकल्ट, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए काफी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है रजिस्ट करना कि अपना नॉलेज दिखाएं Hmm. वहां पे। बट आपके पास 200 वर्ड्स हैं, उन 200 वर्ड में आपको एग्जैक्टली exactly वही बोलना है जो वहां से पूछा गया है। बिल्कुल। तो आपके पास स्कोप नहीं है कि आप अपना, आप बता पाए उनको कि मैंने बहुत पढ़ाई करी है, और Hmm. यू हैव टू टेल देम, यू टू गिव द आंसर। तो ये एक चीज की स्किल होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब फ्रॉम द टॉपर्स एंड नॉन टॉपर्स। I think this also connects back to one of the things that we were earlier talking about, in that कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो there is that innate need या innate sense of intellectual, show off ग्रेट, यस, in the aspirant community कि भाई अरे उसको तो इतना कुछ पता है, right? मतलब that is the exact thing that we were talking about कि भाई मतलब लोग यस, intimidate हो जाते थे, भैया ये तो बहुत ज्ञानी आ गया कोई। एंड यस, यस, लाइक एस्पिरेंट्स में वो एक होता है नीड कहीं ना कहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे में था, जब मैं शुरू में तैयारी किया तो मेरे को होता था कि भाई मतलब मैं बताऊं मेरे को कितना पता है पता करेक्ट, नहीं था, पता बिल्कुल नहीं था, बट लाइक बताना था। एंड करेक्ट, आई थिंक ओवर टाइम द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज, द मोर यू कम अराउंड टू द रियलाइजेशन कि भाई शो ऑफ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, शो ऑफ को फायदा नहीं है। what is more important is that you are able to explain to the person sitting in front of you कि भाई कहना क्या चाहते हो, कि जितने एग्जैक्टली, आसान शब्दों में बोल दोगे, जितने एग्जैक्टली, प्यार से बता दोगे ना, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो हाउ इट ऑल कनेक्ट्स बैक टू द आइडिया दैट सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यस, यस। यू पिकअप एनी टॉपर्स, आपको जो आंसर स्क्रिप्ट आते हैं उनको देख हम्म लीजिए, इतना सिंपली लिखते हैं, उसमें कोई डेप्थ अगर खोजना चाहें तो नहीं मिलेगी। हम्म 200 वर्ड में आप कितना डेप्थ में जा सकते हो, बट एक कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा, हम्म अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस मिलेंगे, और ऐसा लगेगा कि एक कहानी आपको बता दी गई है। हम्म तो वो बहुत जरूरी होता है आंसर राइटिंग के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो आई सॉर्ट ऑफ फील कि भाई यूपीएससी ने बहुत सोच समझ के किया है कि भाई मेंस का आंसर राइटिंग जो है इज एसेंशियली प्रिपेयरिंग यू फॉर द फाइल नोटिंग्स लेटर ऑन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट बिकम्स योर कोर ब्रेड एंड बटर वंस यू क्वालिफाई। और आपको बहुत ब्रीफली, अगर मान लीजिए आपको सुपीरियर को कुछ नया नोटिंग है, आपको बहुत कम शब्दों में लिखना पड़ेगा, ताकि ही हैज हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। तो उसको आपके 2 पेज के नोटिंग्स को पढ़ेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ, सक्सिंक्ट, एंड येट कवर एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इशू। यस, Right. So, like coming to this idea कि भाई how can somebody develop that skill, कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सही या इन जनरल अगर किसी को इम्प्रूव करना है अपनी सक्सेंटनेस या द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन, तो मतलब हाउ डज समबडी इम्प्रूव? अब कुछ लोग होते हैं जो जनरली नेचुरली अच्छे होते हैं इस पे, बट लेट अस से एवरीबडी इज नॉट,
So like, again, somebody who's not, how do we get them to be somebody who is? Very difficult. I am one for whom it comes very naturally, and it comes naturally because of my rational and logical thinking. कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो वो उस क्वेश्चन के बारे में ही जानना चाहता है, तभी पूछा गया है, और उसको कैसे प्रेजेंट करना है ताकि क्लैरिटी आए उस पूछने वाले को। तो मैं आई टेल यू, 10th में आई वाज स्टेट बोर्ड टॉपर। तो वो इसलिए कि मेरा आंसर राइटिंग स्किल तब से मेरा ठीक था कि एग्जैक्टली कितना ड्राइंग बनाना है, कितना नहीं बनाना है, क्या स्कीम देना है। मैंने एक ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज ली थी दिल्ली में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस इंस्टीट्यूट का, बट वो लोग मार्किंग करते थे ऐसे कि कहाँ पे 0 दे रहे हैं और कहाँ पे 10 out of 10 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पता नहीं चल रहा था। ठीक है। और जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहे थे उनका क्या था कि बहुत सारे स्कीमेटिक्स बना देते थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोटो स्कीमेटिक ड्राइंग बना देंगे तो उनको बहुत अच्छा मार्क्स दे देंगे, ये बहुत अच्छा किया। बट वो स्कीमेटिक देख के अगर एग्जामिनर कंफ्यूज होता है तो आपको वहां पे नंबर नहीं मिलने वाला है, ये चीज समझने वाली बात है। सो एन आंसर हैज टू बी रिलेवेंट। अगर उसमें आप ड्राइंग डायग्राम दे रहे हैं तो उस डायग्राम को फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, और उसको आप रेफर करके आप आंसर की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, इसलिए वो डायग्राम दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा एक डायग्राम दे दिया जो कि खुद में समझने में हैरानी हो रही है, तो इट्स नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू, इट्स गोइंग टू रिड्यूस वैल्यू। तो एक आपको, और दिस दिस जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि दिस रेजिस्टिंग द अर्ज टू शो ऑफ योर दैट इज वेरी क्रिटिकल। आप अगर वहां पे फ्रेंच हिस्ट्री के बारे में बात करने लगेंगे उस क्वेश्चन में तो फिर नॉलेज चले जाओ, मतलब हाँ चले जाओ उस इलाके में, मतलब वही है 150-200 वर्ड है, 50 शब्द आपने निकाल दिए फ्रेंच हिस्ट्री पे जिसकी मैं कभी कभी यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड पर्संस को मेंटर करता हूँ, उनके आंसर चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ काफी अच्छे स्टूडेंट्स को ये अर्ज बहुत स्ट्रांग रहती है कि मैं इसमें बताऊं कि मैंने कितनी पढ़ाई की, और दैट इज गोइंग टू किल योर मेंस प्रिपरेशन। एंड आई फील कि दैट इज समथिंग दैट इज आल्सो वेरी रेलेवेंट फॉर यू वंस यूर इन सर्विस, क्योंकि अब सर्विस में भी जाके जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मैन पावर मैनेजमेंट है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, और अब अगर आपके आसपास वाले लोगों को यही लग रहा है कि भैया ये तो बस ज्ञान देने आ गए हैं, ये तो बस दिखाना चाहते हैं कि भाई कितना पढ़े हैं, क्या करे हैं, यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, तो फिर लाइक वही वाली चीज है इन द एंड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज दीस पीपल। करेक्ट। So which is why I've always felt that ki the great leaders, whoever they have been, wherever they have always been people who have been able to communicate simply and effectively. And like I think there is no better, no, I have come to realize, and very late in my life, I should have realized this earlier, that the single biggest skill that you can have is communication skill. It is. And you may be an average student in school, you may be, not that interested in academics, but if you have good gift of gab, you can win the world. I mean, with so your see words. again, इसको ना पता है, मतलब आपने बोल दिया बहुत सिंपली, यू आर समबडी हु हैज दैट पर्सपेक्टिव, यू सीन लाइक इन सर्विस कैसे इसका फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आई एम समबडी हुज हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम द स्टार्ट। नंबर अच्छे आ रहे नहीं आ रहे, पता मेरे को कि भाई बात कैसे करनी है, बताना कैसे, कहानी क्या है इसके अराउंड, राइट। तो मतलब आई हैव दैट स्किल, बट I've also always heard people say कि if you have good communication skill बाकी सब तो हो जाएगा। अभी communication skill और like हो जाएगा, इसके बीच का गैप कैसे भरना है कभी कभार मतलब नहीं पता चलता है। That is somewhere somehow like one of the most frustrating parts, which is why like over the last couple of years this is what I've devoted a lot of my time to, कि मतलब यार मेरे को ये कुछ स्किल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एट वन पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई मेरे क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा वीक है मेरा, मतलब मैं कर लेता हूँ but it takes me like conscious effort to get there, it takes me like मतलब झगड़ना पड़ता है मुझे। तो then like मैंने कहा यार ये तो चाहिए, अब like बट यहाँ है, यहाँ कैसे जाए। ये बहुत ही अच्छी बात की आपने एक्चुअली। जो ये इट्स अगेन सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग गैप है तो फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत लोग, हमें पता नहीं रहती है, हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट का हैं, बट हमारे में जो कमियां हमें नहीं पता रहती है, तो वी कैन नॉट इम्प्रूव ओवर टाइम। तो ये पता रहना बहुत जरूरी है। और वंस यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑल यू नीड इज नॉलेज बेस, और एक नॉलेज बेस आपके पास आ जाए, सो दैट यू आर नॉट फ्लफिंग, यू आर नॉट you are giving substance when you're speaking, and that's what people expect from you. Even if we are directing say 100 people in the district, we have to be substantial. Yeah,
in our words. You cannot just for example, आप किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आपको उसका हर एस्पेक्ट पता रहना चाहिए, क्या उसके गाइडलाइंस हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो नहीं तो फिर आप क्यों मानेंगे अगर आपको खुद पता नहीं। आपको ही सो पता नहीं है, आप लीडर हैं, आप आगे आके कुछ भी बोलने लग गए, तो भाई जो बंदे हैं बिल्कुल चार जिनको पता है, टेकन वेरी लाइटली, विल बी टेकन वेरी लाइटली। मतलब नॉट जस्ट वेरी लाइटली, देयर विल बी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन बिहाइंड योर बैक कि भैया इनको तो खूब पता ही नहीं है। एंड ये अगर एक चीज आपके साथ होने लग जाती है कभी भी, तो देन दैट इज समथिंग आई फील दैट इज वेरी हार्ड टू काउंटर एक्ट कि भाई, यस तो या तो मतलब आई थिंक दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू वन ऑफ दोज ग्रेट आइडियाज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स कि भैया लाइक इफ यू डोंट नो समथिंग, stay quiet rather than speaking and removing all doubt. yes, yes. But the problem in the service that you cannot stay quiet. Your work will not get done. Obviously, So yeah, so here you have to have that that grasp of subject matter. good So I communication think skill UPSC depth होनी trains चाहिए. you well. I mean, Hmm. UPSC trains really well in that regard, and that's why this wide base of knowledge is much required. And आपको लगता है कि हो सकता है कुछ चीजें काम ना आए, जैसे हम Hmm. कहते हैं कि अलजेब्रा तो हमें कभी आज तक काम नहीं आया, Hmm. बट उसमें जो आपने अपने ब्रेन को अप्लाई किया एनालिसिस में, वो एनालिटिकल स्किल आपके काम आ रहा है। Hmm. But तो not just इसलिए that, I यूपीएससी think जो we were also talking about this कि भाई आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगे हुए हो, तो भाई आपको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पकड़नी है कि भाई टेंडर में कोई गैप है पकड़ना है, तो नंबर्स तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए ना, मतलब अलजेब्रा बिल्कुल नहीं है, एनालिटिक, बट लाइक रिलेशनल एबिलिटी तो होनी चाहिए. डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा हम्म. इंटरप्रिटेशन उस बहुत ज़रूरी है। आपको स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, मान लीजिए आप ड्रॉ कर हम्म. रहे हैं, तो क्या वो जिस बेसिस पे आप जा रहे हैं, क्या वो बेसिस स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन है टू गो फॉर हम्म. इट। तो ये बेसिक स्किल है जो लॉजिकल रीजनिंग आपको चाहिए होता है। आपको ये सारी ट्रेनिंग जो है यूपीएससी के थ्रू मिलती है, इसलिए इसका इतना वास्ट सिलेबस और इतने सीसेट वगैरह भी लिया जाता है। तो आई थिंक देर इज अ रीजन व्हाई यूपीएससी सिलेबस इज सेट टू बी सो वास्ट। Yeah. यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन, योर आप जब काम करते हो तो आपके इंस्पिरेशन वहीं से ड्रॉ होते हैं, जो भी चीज़ है हम्म. आपने। तो इसमें coming to the idea that somebody, let's say, who's preparing for mains and is watching this episode, तो what would be your advice to somebody giving mains this year? क्योंकि मेंस भी आई थिंक 40-45 दिन रह गए हैं. It's on the 15th of September, so not a lot of time. So in this last month or so, what should somebody be doing in order to improve their output? मेरा कहना ये है कि आप डोंट वरी अबाउट योर नॉलेज बेस नाउ, Hmm. बिकॉज आपने तैयारी की है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आपका नॉलेज सफिशिएंट होगा। Hmm. वरी अबाउट योर राइटिंग स्किल और बीइंग सक्सिंक्ट, Hmm. बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड की, और बीइंग एबल टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि आप कहना क्या चाहते हो। Hmm. ये सारी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक वक्त के बाद आपका नॉलेज सबका लगभग उतना आ जाता है कि आपके पास, मुझे लगता है जो क्वालिफाई नहीं भी करते हैं मेंस, उनके पास उतना नॉलेज है जो बेस्ट मार्क्स से क्वालिफाई करें। इट्स जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन। तो Hmm. आपका प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करिए, गिव एज मेनी टेस्ट, टाइम्ड टेस्ट। मैं देखता हूँ, मैं जब टेस्ट सीरीज दे रहा था दिल्ली Hmm. में, उस समय कई सारे मेरे पीयर्स थे, वो लोग दे आर ऑल गोइंग टू राइट मेंस दिस ईयर, बट दे वर टेकिंग टेस्ट होम, और घर पे अच्छे से लिख के ला रहे थे, वापस सबमिट करे ताकि उनके मार्क्स उसमें अच्छे आए, Hmm. टेस्ट सीरीज में अच्छा है। बट दैट इज नॉट द योर गोल। योर अल्टीमेट Hmm. गोल इज टू गेट गुड मार्क्स इन यूपीएससी, और उसमें आपको बहुत कम समय में सारे आंसर लिखना है। तो बी वेरी सिंसियर इन योर टेस्ट सीरीज। आपको 3 घंटे में लिखना है तो 3 घंटे में लिखिए, कभी बल्कि 2 टेस्ट भी आप दीजिए, बिकॉज 3-3 घंटे 6 घंटे आपको लिखने पड़ते हैं, Yeah. वो भी आप दीजिए। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी कंफर्टेबल विथ योर पेन चॉइस। एंड मेरा एक ऐसा सिचुएशन आ गया था, नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट about 10 days before mains exam, Hmm. you won't believe it, I told my roommate, yeah, I got bored of preparation, now I just want to write the exam, Hmm. because I thought that I have come to a level where no more reading is required, or Hmm. no more new knowledge has to be acquired in that regard, and I'm ready to write the exam। वो feeling जब आपकी आ जाए तो don't worry about it। Hmm. बट अगर नहीं आ रही है तो नहीं आ रही तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। आप Hmm. एक एक एक्चुअली एक वो डाउट रह जाता है, डाउट Hmm. वो रह जाता है कि शायद अगले को मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन आपको इस बात से ड्रॉ करना है लॉजिक कि Hmm. यार 200 वर्ड्स हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, बीच में बच जाते हैं आपके 100 वर्ड्स। तो 100 वर्ड में आप कितना डेटा, कितना इंफॉर्मेशन, कितना फैक्ट डाल पाओगे,
और आप कितना अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल थॉट डाल पाओगे, ये सोचो। और हम्म आपको ओरिजिनल थॉट डालने में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ना कि डेटा याद करने में। एज एन ऑफिसर ऑल्सो यू ऑलवेज हैव डेटा एट योर हैंड। हम्म आप किसी से मंगवा लो, ऑनलाइन सर्च कर लो हम्म डेटा, और वो फैक्ट बस आपके पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। बट योर ओन, बिकॉज मेरी तैयारी का एक और बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था ना, उसके बारे हम्म में, उसके प्रोज कॉन्स मन में सोचना, ऐसे बैठे बैठे कि हाँ अच्छा, मुझसे ये सवाल पूछा गया तो उसको मैं कैसे आंसर दूंगा, और कैसे मैं अपने बातों को जस्टिफाई करूंगा, दिस। राइट So now I was telling you that once you प्रिपेयर इन अ वे जिसमें हम्म आप इन्वॉल्व इतने ज्यादा यूपीएससी के टॉपिक्स के बारे में, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि हम्म आप बैठ के टाइम पास के लिए भी वही सोच रहे हो कि अच्छा ये इंटरनेशनल सिचुएशन में ऐसा है तो उसमें कौन सा पोजीशन राइट है, किसका पोजीशन गलत है, उसमें क्या आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आर्गुमेंट क्या देंगे। हम्म तो ये सब तरीके से तैयारी करते हो ना, तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस आ जानी चाहिए आपके अंदर कि इसका मैं आंसर लिख सकता हूँ। मतलब आंसर ही लिख सकते हो वाली चीज नहीं है। आई थिंक आप ऐसे तैयारी करते हो ना तो आपको एक वो मतलब सीखने का तरीका आ जाता है, परखने का तरीका आ जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग इज, राइट? कि आप मतलब हर नजरिए से देख रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स वेज कर रहे हो, एंड इन द एंड आप डिसाइड कर रहे हो किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस्ड ऑन व्हाट यू फील इज नेसेसरी इन दिस Yes, पर्टिकुलर it's all about सिचुएशन। training your mind to think critically and analyze situation critically. Because ना मेंटल ब्लॉक पता है कहाँ आता है, जहाँ पे हमें मेंटल दिमाग को जब काम में लगाना होता है ना, वहां पे बहुत बड़ा लेजीनेस एक आता है। दिमाग को यूज करना, दिमाग को ट्रेन करना, तो हम्म वो लेजीनेस जब आप ओवरकम करते हो तभी आप ये सब काम कर पाते हो, एनालिसिस करना। क्योंकि आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि हम्म अच्छा तू अभी खाली बैठा है क्रिकेट मैच ना देख के तू ये एनालिसिस करके ये रेपो रेट क्यों बढ़ा है। या तो बहुत ही आप सोच के देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्टार्ट। इट तो इज वो इट अगर इज आप अगर वो एनर्जी बैरियर ओवरकम कर सकते हैं, लेजीनेस ओवरकम कर सकते हैं, देन योर ब्रेन इज ट्रेन्ड फॉर यूपीएससी। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट अप्लाइज ऑल्सो टू लाइफ इन जनरल, कि भाई जिंदगी में भी आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पे अटकोगे, फंसोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड वही वहां पे भी एक वो लेजीनेस वाला बैरियर है कि या तो तुम बैठ के बिल्कुल। आप लाइक उसको मातम मना सकते हो कि हाय मेरे साथ क्यों हुआ, हाय मेरा जीवन या फिर यू कैन फिगर आउट कि भाई मतलब दिक्कत है, लेट्स रिजॉल्व, लेट्स सी व्हाट्स द पॉसिबल वे फॉरवर्ड। इसमें ये है ना कि बहुत लोग आप भी एग्री करेंगे कि इट्स अ 24/7 जॉब, यूपीएससी हम्म प्रिपरेशन में आपको पूरा इन्वॉल्व होना है। मैं जब खाना खाता था तो मैं राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखता था, और हम्म मुझे मजा आता था। आई वाज नॉट डूइंग इट वर्क, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। एंड आई सो डेडिकेटेड, आई टेल यू। हम्म आई रोट इन माय वन ऑफ द कोरा आंसर्स आल्सो कि पहली बार जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे तो मेरे रूममेट्स ने पहले से बोल रखा था कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे इंटरव्यू में, तो हम जा रहे थे ओला से। और हम्म सडनली मुझे इंडिया गेट देखा, मैं दो हम्म साल 1.5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। हम्म पहली बार मैं इंडिया देखा, मैं इतना खुश हो गया कि मैंने सब, अरे वो देखो इंडिया गेट दिख रहा है। एंड दे स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज दे हैव बीन देयर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। हम्म तो इतना इन्वॉल्व हो गया था मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में कि मैंने उस 1.5 सालों में, नॉट दैट आई एम एडवाइजिंग एनीवन टू डू दैट, यू शुड हैव लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन आल्सो, बट मैंने, हम्म आई नेवर सॉ मूवी, नेवर एक्सप्लोर दिल्ली की भैया दिल्ली आ गया हूं, पहले देख लेता हूँ फिर अपना काम चालू हम्म करूंगा। सो इन्वॉल्व, सो इफ यू आर हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, यू आर वेल ऑन यू। सो आई थिंक वही है दैट इन द एंड एक कारण चाहिए कि भैया क्यों कर रहे हो, और फिर उसके बाद मतलब वो लगन चाहिए कि भाई अब अगर डिसाइड कर लिया, सोच लिया तो भाई लग जाओ, फिर अब किसका वेट कर रहे हो? बिकॉज आई यस। फील अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज दे जस्ट मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ऐसा मतलब वेट कर रहे होते हैं कि लाइक एक कोई साइन आएगा ऊपर से, भगवान का इशारा आएगा कि भाई अब तैयारी करो ये आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हम लोग, मैंने भी काफी डिले किया मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि हमें लगता है हम्म कि थोड़ा और नॉलेज आ जाए तो फिर लिखेंगे, लेकिन वो बिना नॉलेज के आप लिखना शुरू करिए। नॉलेज आएगा, वो गैप फिल करेगा, बट आपको वो इंस्टिंक्ट आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत आपके दिमाग दिमाग में चलने लग वो रहा है। फॉर्म होने लगा, चलने हम्म लगा पेन। तो ऐसा आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन देखा और आपका पेन चलना शुरू हुआ, मतलब उसमें फिर वो टाइम लैग नहीं रहेगा सोचने के लिए, तो वो राइट, ट्रेनिंग जरूरी। बिल्कुल, क्योंकि लाइक दिस व्हाट आई से दैट कि भाई अगर आंसर लिखना शुरू करना है तो मतलब घटिया आंसर लिखने से शुरू करो ना। मतलब किसने बोला तुम भैया बेस्ट आंसर डे वन पे लिख दोगे? कोई नहीं लिख पाएगा। मैं वो नहीं मैं लिखता। खुद का भी आंसर अगर देखूं पहला आंसर, तो आई लाफ एट इट कि ये मैं क्या लिख रहा था, बिल्कुल। बट वही वाली बट चीज है ना कि अगर देन वो पहला नहीं लिखोगे तो फिर वो कभी हम्म अच्छा आंसर भी नहीं लिखोगे। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सो वंस आई पिक्ड इट अप, वंस दैट बैरियर वाज ब्रोकन, आई यूज्ड टू राइट एटलीस्ट 5-6 आंसर्स एवरी डे फॉर लगातार 3 महीने तक मैंने लिखे। हम्म तो आप सोच लीजिए कम से कम 150-200
ज्यादा हम्म 500 के आसपास ज्यादा आंसर लिखे थे, तो इतना ट्रेनिंग हो गया था कि कोई भी क्वेश्चन फेंक दो मेरे सामने, मैं तुरंत पेन उठा के लिख, इस तरह का एक सिचुएशन आ गया, विच इज वेरी पुट्स इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। या एंड आई पहले थिंक तो चैलेंज आती है आपको 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में खत्म करना है। हम्म कई लोग नहीं कर पाते, मैंने नहीं, एक पेपर में शायद मैंने 19 ही खत्म हम्म किया था। मतलब तो दैट इज ऑल्सो स्टिल फाइन एंड फेयर एंड एक वही वाली चीज आती है कि अब दिस ऑल कनेक्ट्स बैक टू द आइडिया कि भाई देखो आप कैसे इंसान हो और आपको अपने बारे में कितना पता है, कि अब आपका आंसर राइटिंग में गैप है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग में गैप है, आपका कहाँ किन किन चीजों में गैप है, एक बार असेस तो करो। क्योंकि लोग आई थिंक इसमें ऐसा लग जाते हैं कि लाइक यू सेड कि भैया टॉपर टॉक देख लिया, वो उसने बोला 10 किलोमीटर भाग रहा था, 10 किलोमीटर भाग दिया। ये नहीं देखा कि भैया मुझे भागने की जरूरत है कि नहीं, क्या मतलब मेरे को राइट, मतलब पैर मेरा टूट, जरूरी है क्या कि मुझे भागना चाहिए भी या नहीं? यस यस यस। इनफैक्ट एक एक मैं अपना एग्जांपल दूंगा। देर देर आर टाइम्स एवरी स्टूडेंट, हम्म चाहे आप कितने भी टॉपर हो, यू फील कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम्म सेल्फ डाउट आएगा। उस समय टॉपर टॉक का मैं मतलब अच्छा यूज बता रहा हूँ कि हर दिन ना दिखने से आप 10 टॉपर के सुनिए एक बार, कौन क्या बोल रहा है। आपने अगर अपना स्ट्रेटेजी बना ली है, कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा, कोई ना कोई टॉपर वो स्ट्रेटेजी यूज करके क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुका है। तो आपको वो बिलीफ रीइंफोर्स करना है कि मेरा स्ट्रेटेजी सही है, मैं कहीं गलत नहीं जा रहा हूँ। तो हम्म आप फिर उसी टॉपर को दोबारा देखिए कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने सक्सेस मिला, तो आपको रिएश्योरेंस मिलेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने अर्तिका शुक्ला मैडम मैडम की जो वीडियो है, वो मैं अक्सर जब भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आती थी तो उनका हम्म स्ट्रेटेजी काफी मैच करता था मेरे साथ, और मैंने उसी को फॉलो किया, तो उससे मुझे आई काफी थिंक कॉन्फिडेंस। अर्तिका शुक्ला मैम इज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल जिनको मैंने बहुत फॉलो किया था शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, बिकॉज 2014-15 इज ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड। बट वही है, पहले 2 साल प्रीलिम्स मैं कभी नौकरी कर रहा कभी कुछ कर रहा था, तो वो तो हुआ ही नहीं। बट एक वही था कि मतलब उनको देख के एक वो फील आता था कि भाई यू नो मतलब देयर इज दिस पर्सन, व्हाट शी इज डन इज कि भैया उन्होंने छिक के आंसर लिखे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं हम्म। है, भैया लिखे जा रही हैं, सही है गलत है क्या है नहीं है। एंड शी वॉज एबल टू गेट AIR 4 इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक, राइट? तो यस मतलब एक तो दैट इज इन एंड ऑफ इटसेल्फ लाइक समथिंग मैसिव, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन गेट दैट डन। बट द यस वे शी कन्वेड इट कि भाई देखो ये तरीका है, मैंने ये किया, मे बी आपके लिए काम करे, मे बी आपके लिए ना काम करे, बट वर्क फॉर मी। यस एंड दैट यस। communication was something that was very important कि भैया देखो। बहुत ही क्लैरिटी देता है आपको, और हम्म आपको बिलीव आती है कि सही है, हर रास्ता सही है। मतलब आप अगर अलग अलग टॉपिक, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई आंसर राइटिंग कोई नोट्स बना रहा है कोई नहीं बना रहा है, हम्म तो सारे रास्ते सही है अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो। एंड लाइक दैट ऑल कनेक्ट्स बैक टू कि भैया आपको अपने बारे में कितना पता है एंड आप कितना उसमें यस इम्प्रूव यस। करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई थिंक सुमेश, इट्स बिन अ वंडरफुली informative and engaging session where मतलब I think I just sort of lost track of time. We've been talking for like almost 1.5 hour, but like we'll close this conversation now. But I would like you to share some piece of advice for people who are preparing for UPSC 2024 कि भाई अगर वो तैयारी शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, तो like what would you advise to people who are preparing for the coming UPSC exam next year? आई थिंक स्टूडेंट्स को अगेन कम्स बैक टू दैट, आप एग्जाम को समझिए हम्म कि क्या चाहता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर्स हम्म यूपीएससी इज लुकिंग टू, और पैटर्न एनालिसिस करिए, सिलेबस कवर करिए, खुद को समझिए कहाँ पे आपको हम्म ज़्यादा हार्डवर्क करना है। और आप प्रीलिम्स चाहे कितने भी फ्लाइंग कलर से क्वालिफाई करें, मेंस मार्क्स मैटर्स मोस्ट। हम्म एंड उसमें आपको राइटिंग स्किल की बहुत ज़रूरत है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी स्टार्ट करिए। हम्म और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, हम्म स्पेशली इकोनॉमिक्स और बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी हिस्ट्री विल हेल्प यू सो मच इन द लॉन्ग रन, कि आप हर चीज को कनेक्ट कर पाओगे। तो ये कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करिए आप अपने दिमाग में। हम्म स्पेंड इक्वल टाइम टू रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग। लोग थिंकिंग पार्ट भूल जाते हैं। तो आप अगर 4 घंटा रीड कर रहे हैं तो 2 घंटा राइट भी करिए और 1 घंटा थिंकिंग भी करिए उस टॉपिक के बारे में, कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ, हम्म पॉलिटी के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। लिंक करिए, थॉट प्रोसेस को ओपन करिए, देन थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू। एंड बाकी जो हमने डिस्कशन किया वो सब तो आपके लिए रिलेवेंट है ही, तो
स्पेशली अगर कोई सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है, चूंकि मैंने भी सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, पहले अटेम्प्ट को आप एनालिसिस करिए कहाँ पे गलतियां हुई आपसे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बिकॉज यू आर एट अ लेवल वेयर फ्रॉम वेयर यू कैन टेक ऑफ। आप बिगिनर नहीं है, आप स्टार्टर नहीं है, यू आर ऑलरेडी समवेयर, तो आप एनालिसिस जरूर करें, विदाउट एनालिसिस यू आर गोइंग नोवेयर। Right. And I think that is a brief summary of whatever I've said for the last 2 years publicly on YouTube and Twitter and everywhere. Basic चीजें यही है, कुछ बदलता नहीं है इसमें. So if you're Yes. preparing for next year, best of luck. And thank you so much for your time. It has been a great pleasure talking to you. And Same here, same here. I would again remind people that do please check out Somesh sir's books, which is Indian Geography through Maps. क्योंकि geography मतलब बिना मैप के कर रहे हो तो फिर वो मतलब नहीं चमकेगा, राइट? सो थैंक यू अगेन एंड हैव अ वंडरफुल डे।